बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। सेकेंड ईयर में हमारा जो चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, what kind of neurons are there and how many types of receptor and their distribution in different parts of the body. Today we are going to study about the nerve impulse. आज हम nerve impulse के बारे में जानेंगे कि nerve impulse है क्या चीज़। सबसे पहले तो we must know that there are two kind of cells in our body which are excitable cells, and these cells can be excited by the movement of the ions. These are positive and negative ions. So two kinds of excitable cells are neuron and muscles. Neuron और muscles ऐसे cells हैं which can be excited by the nerve impulse which travel just like the electric current in the wire. जिस तरह से किसी वायर में करंट फ्लो करता है, बिल्कुल ऐसे ही nerve impulse in the neuron membrane travel करती है। यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स, उनकी मूवमेंट की वजह से देयर आर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इनसाइड द न्यूरॉन सेल्स, एंड दीज केमिकल रिएक्शंस देन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस एंड ब्रिंग अबाउट द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स क्या चीज़ है, ये हम अगर डिस्कस करें तो नर्व इम्पल्स इज wave of electrochemical changes which travel along the length of the neuron and bring involving chemical reactions and movement of ions across the cell membrane. So जब एक wave of electrochemical changes occur होती है along the membrane of the neuron and there is movement of the ions, and which are the ions which move along the membrane? Definitely these are the potassium and sodium ions, and there are some other ions responsible for the nerve impulses we will discuss later. So I would say that there must be memorization of this definition for short answer. What is nerve impulse? Nerve impulse क्या है? It is a wave of electrochemical changes which travel along the length of the neuron involving chemical reactions and movement of ion across the cell membrane. Now the second term which we must know about the nerve impulse, that is the electrical potential. What is electrical potential? It is the capacity to do electrical work. जिस तरह से हम कहते हैं ability to do work is called energy. It is electrical potential, which is actually potential energy. So it is the measure of the capacity to do electrical work. एक और टर्म हम इस सिलसिले में पढ़ेंगे, that is potential gradient. Potential gradient क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन एंड इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, इसमें आयन की मूवमेंट होगी, यानी आयन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर मूव करेंगे, और आयन की इस मूवमेंट की वजह से सम ऑफ द आयन विल बी मोर इन द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सम आर मोर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कुछ जो हैं वो ज़्यादा होंगे इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सो इनकी मूवमेंट की वजह से देयर विल बी डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, and this difference of potential of concentration of ion across the membrane is potential gradient. इसको हम potential gradient कहते हैं। अब इस potential gradient की वजह से membrane के ऊपर एक बाकायदा potential होता है of the charges, and that potential on the membrane of the neuron, that is called membrane potential. So what is membrane potential? Membrane potential is electrical potential that exists across the membrane. ये membrane potential जो है इसको हम further दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. One is the active membrane potential and resting membrane potential.
Resting membrane potential mean the potential on the membrane or electrical potential on the membrane which is there at the time when membrane is not conducting any impulse. जब membrane कोई impulse conduct नहीं कर रही है उस वक़्त जो membrane के ऊपर potential है because of the difference of ion inside and outside, that is resting membrane potential. और ये resting membrane potential जो है इसकी वैल्यू आमतौर पे -70 से -90 मिली वोल्ट्स होती है. एंड दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज व्हाई देयर इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. पहले तो मैं आपको इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा. हमने पहले भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ा हुआ है. दीज आर डिफरेंट lipid layers, one lipid layer and the other lipid layer, lipid bilayer है, and there are some proteins inside. ये प्रोटीन है inside. If you remember fluid mosaic model में हमने कहा था there are intrinsic and extrinsic proteins. These proteins are also named as channel proteins. There are different channels inside the protein. You know, protein is permeable. It is रूटीन में भी ये परमिएबल होती है और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे भी कुछ आयंस को परमिट करती है. और ये परमिशन जो है जब आयन मूव करते हैं तो डेफिनेटली दे मूव थ्रू सम चैनल्स. वो चैनल्स के ज़रिए से मूव करते हैं. देयर आर डिफरेंट चैनल प्रोटीन्स. सो ये चैनल प्रोटीन्स हैं विच में भी पोटासियम पंप्स आर गेट्स आर वोल्टेज मोटिवेटेड गेट्स आर लिगैंड मोटिवेटेड गेट्स. देयर आर डिफरेंट गेट्स. सो ये मेम्ब्रेन है. अगर आप ये समझ लीजिए दिस इज़ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन. आप देख रहे हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं आउटर साइड पे और नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं इनसाइड पे. दीज आर द नेगेटिव चार्जेस एंड दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस विच आर मोर ऑन द आउटसाइड. आउटसाइड पे ये ज़्यादा चार्जेस हैं. नीचे भी एक दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया. यहाँ पे आपको नज़र आ रही है. आगे हम एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई मेम्ब्रेन इज़ मोर पॉजिटिव ऑन आउटर साइड एंड मोर नेगेटिव ऑन इनर साइड. वाई इट इज़ सो. ऐसा क्यों है? हम देखते हैं इसकी वजूहात क्या हैं. यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 मिली वोल्ट्स का है, वाई इट इज़ देयर. क्यों ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है? तो आइए देखते हैं कैसे क्यों ऐसा है. सोडियम आयंस की अगर हम बात करें तो सोडियम आयन 10 टाइम्स आर हायर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड दैन इनसाइड. एक बात आपने याद रखनी है ड्यूरिंग दिस होल लेसन कि आपने सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को सोडियम आयन के साथ ही कंपेयर करना है, पोटासियम के साथ कंपेयर नहीं करना. तो हम कह रहे हैं कि सोडियम आयन जो हैं दे आर 10 टाइम्स मोर इन द आउटसाइड. आउटसाइड पे सोडियम आयन 10 गुना ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू इनसाइड. यानी सपोज इनसाइड देर आर 10 सोडियम आयंस, इट मीन देर आर 100 सोडियम आयंस आउटसाइड. तो आउटसाइड जो है वो 100 सोडियम आयन होंगे यानी 10 गुना ज़्यादा होंगे. जबकि पोटासियम आयन जो है दे आर 20 टाइम्स हायर इनसाइड दैन आउटसाइड. जबकि पोटासियम आयन जो है वो ज़्यादा है 20 टाइम्स इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड. फिर यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि फ़र्ज़ कीजिए आउटसाइड में पोटासियम आयन जो है वो 10 है तो इसका मतलब है इनसाइड में पोटासियम आयन 200 हैं. इसी तरह से वो 20 टाइम्स हो जाएंगे. उसके बाद देयर आर सम नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर नेगेटिव charges inside the membrane. These negative organic ions are proteins, negatively charged proteins होती हैं, organic acids हैं, sulfates और phosphates हैं. These are the larger macromolecules and they cannot move out of the membrane. ये membrane इनके लिए permeable भी नहीं होती है. They are always there inside the membrane, so they make the inside more negative. ये भी inside को ज़्यादा negative बनाते हैं. अब ज़रा देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है आउटसाइड मोर पॉजिटिव एंड इनसाइड मोर नेगेटिव, ऐसा क्यों होता है.
ऐसा क्यों है? It is because of the movement of ions and because of the negative organic ions like protein, organic acids, sulfates and phosphates, जिसका हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले। सोडियम पोटेशियम ATPase भी है यहाँ पे, यानी ये एक एंजाइम है विच हेल्प इन द पंपिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। पंपिंग कब हम बात करेंगे? व्हेन देयर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप सो आप सारे लोगों को पता है कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर concentration to the higher concentration, यानी against the concentration gradient, which is also named as uphill movement of the ion। जबकि जो पैसिव मूवमेंट है दैट इज रिक्वायरिंग नो ATP, इसके लिए कोई ATP की ज़रूरत नहीं होती और हायर कंसंट्रेशन से आयन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मिसाल के तौर पे बाहर सोडियम आयन 10 टाइम्स ज़्यादा है और अंदर सोडियम आयन 10 टाइम्स कम है, तो जाहिर है बाहर से सोडियम आयन अंदर आ सकते हैं। इट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसी तरह से पोटेशियम आयन जो है वो 20 गुना ज़्यादा है इनसाइड और बाहर जो है वो कम है, तो इसका मतलब है पोटेशियम आयन जो है दे कैन मूव आउटवर्डली बाय द पैसिव मूवमेंट। ये पैसिव मूवमेंट के ज़रिए से मूव कर सकते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो सोडियम पोटेशियम ATPase है, ये भी एक प्रोटीन है। इट इज़ आल्सो ए चैनल विच इज़ फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स हैं, मैकेनिकली गेटेड हैं जो कि खुल जाती हैं अंडर द प्रेशर ऑफ द आयन। देन वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये वोल्टेज गेटेड चैनल ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो ख़ास वोल्टेज के ऊपर ही, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ही ओपन होंगे। देन लिगैंड गेटेड चैनल्स, ये अगर हम लिगैंड की बात करेंगे तो बहुत दूर हम चले जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी एंजाइम के साथ को एंजाइम की बात करते हैं कि ये गेट तो मौजूद होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक आयन जब तक एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ जब तक आके नहीं लगेगा, ये चैनल एक्टिव नहीं होगी, इसके ज़रिए से मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। सो बात हम कर रहे थे कि कैसे ये आयन जो हैं वो बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रखते हैं। एक तो वजह मैंने आपको बता दी उसकी कि एक तो जब दो पोटेशियम एक्टिवली इनवर्ड मूव करेंगे, ये मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, जब दो पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, बात हो गई बार बार कि पोटेशियम ऑलरेडी इनसाइड ज़्यादा है, तो जब बाहर से अंदर की जानब पोटेशियम जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सो पोटेशियम आयन दो अगर बाहर से अंदर आएंगे बाय यूजिंग ATP, तो 3 सोडियम जो है दे विल बी पम्प्ड आउट, 3 सोडियम जो है वो बाहर जाएंगे। यानी बाहर से कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है और अंदर से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से डेफिनेटली अंदर से पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और फिर नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की भी बात हम कर चुके हैं, जो कि प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फॉस्फेट्स और सल्फेट्स हैं, जो कि इनसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा नेगेटिव रखेंगे। अब ज़रा हम आते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, यानी एक्शन पोटेंशियल की तरफ। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तो बात हो गई। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? इसके मानी तो यही बनेंगे कि पोटेंशियल इन एक्शन, यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि जब वो क्रिएट हो जाए तो मेम्ब्रेन कंडक्टिंग हो जाए, मेम्ब्रेन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगी जिस पोटेंशियल के ऊपर, दैट विल बी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, इट इज़ अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, इसको हम कहेंगे दिस इज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब क्रिएट होगा मेम्ब्रेन के अलॉन्ग? व्हेन देयर विल बी थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। जब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तो उस वक्त ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होगा। अब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस क्या है? एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस विच कैन ब्रिंग रिमार्केबल लोकलाइज्ड चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक ऐसा मुनासिब स्टिमुलस जो काबिल ज़िक्र लोकलाइज चेंज इन पोटेंशियल कर दे, यानी इतना स्टिमुलस ज़रूर हो कि वो
रिवर्स ऑफ द चार्जेस इस कदर कर दे कि मेम्ब्रेन जो है इट स्टार्ट कंडक्टिंग एन इम्पल्स, कि मेम्ब्रेन जो है वो इम्पल्स कंडक्ट करना शुरू हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज गेन्ड ऑन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा। यूं ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, सोडियम आयन मूव इनवर्ड। क्यों मूव करेंगे? अब यहाँ पे एक स्टिमुलस क्रिएट हो गया है, स्टिमुलस थ्रेशोल्ड मिल गया है, इसकी वजह से जो सोडियम और पोटासियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और ये ओपन एटीपी की मदद से नहीं हुए और ना ही ये मूवमेंट एटीपी की मदद से हो रही है, बल्कि क्या होगा, सोडियम चूंकि बाहर ज़्यादा है और पोटासियम अंदर ज़्यादा है, लिहाजा वो पैसिव ट्रांसपोर्ट शुरू कर देंगे। सोडियम आयन जो हैं वो इनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे, जबकि पोटासियम जो हैं दे विल मूव आउटवर्ड। पोटासियम आयन जो हैं वो आउटवर्ड मूव करेंगे। जाहिर है पोटासियम आयन बहुत ज़्यादा हैं, 20 गुना ज़्यादा हैं, और इनकी जो मूवमेंट है दैट विल बी फास्टर एज़ कम्पेयर टू सोडियम, क्योंकि इनकी भी कंसनट्रेशन ज़्यादा है बाहर अंदर की निस्बत, तो इनकी मूवमेंट होगी। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटासियम आयन का पोटेंशियल डिफरेंस 20 टाइम्स है, जबकि इसका 10 टाइम्स है। सो मूवमेंट होगी, और इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट विल चेंज फ्रॉम -70 टू +50 मिलीवोल्ट्स। -70 से +50 मिलीवोल्ट की तरफ मूवमेंट चलेगी। जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। यूं ही चार्जेस रिवर्स होंगे। एक और बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन के एक छोटे से हिस्से में ही ये चार्जेस रिवर्स होंगे। यहाँ पे अगर आप इस मेम्ब्रेन को देखें तो ये जो रेड कलर एरिया आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द एरिया वेयर द मेम्ब्रेन इज़ इन एक्शन पोटेंशियल, एंड ब्लैक एरियाज जो हैं दैट इज़ द एरिया वेयर मेम्ब्रेन इज़ इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे चार्जेस रिवर्स हुए हैं और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो है इट विल मूव फॉरवर्ड नाउ, ये आगे की जानब मूव करेगा, और यूं यूं ये आगे मूव करता जाएगा, इससे पीछे एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है, इसके पीछे पीछे एक वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी क्रिएट हो जाएगी। यानी अगले ही लम्हे इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सेकेंड यहाँ पे रेस्टिंग की बजाय एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा, और यहाँ पे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इट विल बी फॉलोड बाय रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, और इस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो आगे को बढ़ती जाएगी। तो पहले ये बिल्कुल पोलराइज्ड स्टेट में थे, पोलराइज्ड थे क्योंकि बाहर पॉजिटिव ज़्यादा अंदर नेगेटिव ज़्यादा। फिर डीपोलराइजेशन हुई, यानी एक हिस्से में रिवर्स हुआ चार्जेस का, और यूं ही रिवर्स हुआ उसके फ़ौरन बाद एक रीपोलराइजेशन की वेव भी आ गई, और आखिरकार रिकवरी हो गई। सो इन दिस मेथड अ न्यूरॉन कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स। इस तरीके से न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। मिसाल के तौर पे नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की डेफिनेशन भी। एमसीक्यूज में कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और पोटासियम जो है ना वो अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में, और इसी तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी एमसीक्यूज़ का हिस्सा बनाया जाता है। इसके अलावा आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि कितने पोटासियम आयन जो हैं वो एक्टिवली इनवर्ड मूव करते हैं और कितने सोडियम आयन पंप आउट होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, और फिर आपसे जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हैं उनका भी तज़किरा किया जा सकता है। एमसीक्यूज़ में भी ये जिक्र हो सकता है और शॉर्ट आंसर भी हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक और टर्म, प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन, योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।